जैसे नई बैटरी वाली गाड़ियां हैं, उनका अब एक स्टेशन है जहां जाके वो साथ में चार्ज कर सकते हैं, जल्दी चार्जिंग होती है। ये वैसे ही स्टेशन है, सब गाड़ियां ला रखे हैं अपनी, साथ में चार्ज करते हैं मिलके। Like all the new battery cars, they go to charging stations together and they can charge together. This is a charging station where all the batteries come and get charged. Amen. So for people who say that as a rule you should never तो जो they लोग don't understand the text. तो जो लोग कहते हैं कि जब साथ मिलते हो कभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि उनको वचन समझ में Because नहीं if you आया। read the chapter अच्छे से, अगर ठीक से चैप्टर पढ़ेंगे, you will see Apostle Paul says, because if I'm praying in church, I'm still edifying myself. It's not wrong. He's not saying that is wrong. क्योंकि पौलुस प्रेरित ये कह रहे हैं, अगर मैं कलीसिया में आकर भी अपनी व्यक्तिगत भाषा बोलता हूं तो मैं अपनी तो उन्नति कर रहा हूं, वो गलत नहीं है। But the people who are listening, they are not edified. लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनका कुछ भला नहीं होगा उसमें। अगर आप अभी आते और आप मुझे देख रहे होते 7 घंटे और मैं कर होता रिबलाबा शाकाठारा ब्रोलागा बादाना, फिर वो गलत होता। मगर यहां से मैं कह रहा हूं रबो शाका, वहां से आप कह रहे रिगाबाला गाराबो से कह रहे, तो मजा आने वाला है। If you would have come to church and I would have prayed 7 hours in tongues and you would have watched me, that would have been wrong. But when I pray in tongues, you also pray in tongues. That's how we build each other up. Amen. We are doing this when we do something together, it's easy. जब हम साथ मिलकर कुछ करते हैं तो वो आसान हो जाता है। And a good leader और एक अच्छा अगुवा doesn't tell people what to do, he shows them how to do it. लोगों को बताता नहीं है कि क्या करना है, वो लोगों को करके दिखाता है ऐसे So करना that है। then you can do it yourself. ताकि जब आप अपने आप करने लग जाओ, So that even in your house you shut your door and you are rabba sakara la ताकि अपने घर में भी आप दरवाजा बंद करो, अन्य that भाषा में becomes प्रार्थना your करो। lifestyle. ये आपका जिंदगी जीने का तरीका बन जाए। That's the intention. And you say, ये तो gibberish लगती है। Oh, this seems like gibberish. बड़बड़ाना लगता है। जो भाषा आपको नहीं आती सब gibberish ही लगती है। Whatever languages you don't know sound like gibberish to you. चाइनीज सुनिए आपने, जिब्रिश ही सुनाई देती है। जो भाषा आपको समझ में नहीं आती वो जिब्रिश समझ में आती है। Whatever language you don't understand sounds gibberish to you. Amen. Praise God. But we pray in the Holy Ghost by faith. प्रभु को धन्यवाद हो कि हम विश्वास के द्वारा अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। Because let's put that scripture again, 14:2. When anybody pray in tongues, no one understands him. What does no one mean? No one means no one. लिखा है जब कोई अन्य भाषा में बात करता है तो कोई भी उसको नहीं समझता। कोई भी नहीं समझता का मतलब क्या होता है? मगर जिसको समझना है वो बिल्कुल समझता है कि आत्मा क्या कह रहा है। But he who has to understand understands everything you are saying. Sometimes people come to me, they say, Pastor, all that we can say is dada 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 बोलते रहो, डाडा से लाला करते करते बहुत सारा बढ़ता जाएगा। आपका बच्चा जब पैदा हुआ था तो ऐसे हुआ था, पैदा हुआ, अरे मम्मी पापा कैसे हो आप? नहीं, उसने भी ऐसे ही बोलना शुरू किया, मामा दादा, वैसे करके बोलते जाओ, मिस्ट्रीज निकलने लग जाएंगी आत्मा से आपकी। Yeah, if there's anybody who just speaks one syllable or 2 syllables, do not worry about what you're saying. Keep on speaking those syllables and you will keep on expanding your ability to pray in tongues. Amen. ये नदी है, नदी, स्वर्गीय नदी। Yeah. This is a heavenly river. बहने दो। Let it पड़ोसी को flow. बोलो, पड़ोसी नदी को बहने दो। Tell your neighbor, let it flow. ये 299 ग्राम का भेजे को मत बुलाओ बीच में जो आत्मा काम करना चाहता है। Do not bring your 299 grams brain in between the work that Holy Spirit wants to do. Because Paul says, when I pray, Holy Spirit through my spirit prays. Holy Spirit कहते हैं जब मैं प्रार्थना करता हूँ When I pray in tongues, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के द्वारा प्रार्थना करता है। but my understanding is unfruitful. पर मेरी समझ तो फलहीन है उसमें। मतलब यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। That means nothing registers here. प्रभु ने इसको बाईपास ही कर दिया। God bypassed our brain. यहाँ से आप प्रे करते हो अन्य भाषा में। You pray from here in unknown tongues. And क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? He who speaks in tongue does not speak to man.
for no one understands him. However, in the Spirit, he speaks what? Mysteries. The word of God is saying वो जो अन्य भाषा में बोलता है उसको कोई नहीं समझता, लेकिन वो आत्मा में भेद की बातों को बोलता है. People who consistently pray in the Holy Spirit become containers of mystery. वो लोग जो निरंतरता से अन्य भाषा बोलते रहते हैं वो भेदों से भरे बर्तन बन जाते हैं. मैं किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया, I never went to any Bible college, मगर स्कूल के कॉलेज, आत्मा के कॉलेज जरूर गया हूँ. but I went to the school of the Spirit. When I would pray hours in the Holy Spirit, जब मैं घंटों तक आत्मा में प्रार्थना करता रहता, then Holy Spirit, that scripture means this, as like aha. तब पवित्र आत्मा कहता उस वचन का ये मतलब है, और मैं कहता The mysteries started to open. वो भेद खुलने लग जाते हैं. You cannot read Bible and understand Bible with your carnal mind. आप बाइबल को पढ़ और समझ नहीं सकते इस शारीरिक बुद्धि से. It's a book of mysteries. वो रहस्यों की किताब है. Amen. And one more reason I tell you why you should have a consistent lifestyle. पहला, you will be a person of mystery. Second, you will start walking in tremendous power. और एक और कारण बताता हूं. पहला कि आप भेदों से भरे व्यक्ति होंगे. दूसरा, आप परमेश्वर की सामर्थ्य में जीने लग जाओगे. Demons will look at you, they'll start screaming. दुष्ट आत्मा आपको देख के चिल्लाने लग जाएंगी. Why? क्यों? Because charge है भाई अंदर. There's so much charge inside. Amen. मैं सबसे महंगा फोन ले लूं दुनिया का. I can buy the most expensive phone in the world. iPhone 15, 20, 25 जो भी आएगा. Yeah, whatever iPhone version I comes. can have the best phone. सबसे अच्छा फोन हो मेरे पास. मैं चांद की फोटो खींच लूं इससे. I can click the moon from it, मगर इसको चार्ज ही करना भूल जाऊं. but I forget to charge it. It's as good as dead. वो मरा हुआ ही है फिर. कई विश्वास कह रहे गॉड यूज मी, गॉड यूज मी. प्रभु कह रहा है भाई चार्ज ही नहीं है, करना तो चाहता हूं मैं यूज, बहुत से मगर चार्ज विश्वासी नहीं है. बहुत से विश्वासी कह रहे हैं प्रभु मेरा इस्तेमाल करो, प्रभु मेरा इस्तेमाल करो. गॉड इज सेइंग आई वांट टू यूज यू बट यू आर नॉट चार्ज्ड. चार्ज भर लो, कभी प्रे नहीं करना पड़ेगा गॉड यूज मी. जस्ट चार्ज योरसेल्फ, यू विल नेवर हैव टू प्रे गॉड यूज मी. कितने लोग रेडी हैं अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए? How many people are ready to charge their batteries? Amen. इसीलिए Amen. हम लोग इकट्ठा हुए इस जगह में, कोई This is- धार्मिक रिचुअल पूरा करने के लिए नहीं. This is why we have gathered here. This is not for any religious ritual. This word edified comes from the Greek word edifice, which means when you pray in tongues, you build a huge, marvelous, magnificent structure in the spirit. और ये जो शब्द है उन्नति, ये उन्नति शब्द वैसा है जैसे एक बड़ी महान इमारत को बनाया जाए. तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो अपने जीवन को एक बड़ी महान इमारत की तरह मजबूत कर लेते हैं. देखा आपने जो लोग जिम जाते हैं, जिनके बहुत ही बड़े डोले होते हैं, तो लोग कहते हैं इसने स्टेरॉइड लिया हुआ, इंजेक्शन लिया हुआ. Yeah, when people go to gym and somebody has big muscles, people say they would have taken steroids. I mean, like, it's not a good example, but all I can say is if you understand it, praying in the Holy Ghost is like steroids to your spiritual life. It will buff you up. आत्मा में प्रार्थना करना आपके आत्मिक मनुष्य के लिए स्टीरॉइड्स की तरह है. वो आपको बड़ा कर देगा, विशाल कर देगा. Amen. How many people want to have tremendous spiritual muscles? कितने Right? लोगों को बहुत मजबूत आत्मिक मसल चाहिए हैं. यहाँ की जो मसल है अच्छा है, मसल बनानी है हमें. मना नहीं These कर रहा हूँ. muscles are good. बनाओ मसल, Make those मगर muscles. इसकी एक एक्सपायरी डेट है. कुछ yeah. टाइम बाद ये लटक जाएगी, These have an झुर्री आ expiry जाएगी. date. Yeah. मगर जो आत्मिक मसल बनाओगे अनंत तक वैसी ही रहेगी. But your spiritual muscles will remain with you until eternity. स्वर्ग में भी ऐसी रहोगे. You'll walk like this in heaven also. Amen. Are you ready? कन्विंस हो चुके हो आप? Are you अगर नहीं हो convinced? तो आपकी लकड़ी गीली है. If you're not convinced, still your wood is wet. Amen. तैयार हो? Come on. Let's stand up. Let's just pray in the Holy Ghost. आइए हम खड़े हो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए. Hallelujah. And let me also tell you, don't focus on your feelings. अपनी भावनाओं पर ध्यान मत When you're देना. praying in tongues, जब आप अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हो, try to find to connect to that jet stream. वो जो जेट स्ट्रीम है उसमें जुड़ने का प्रयास करना. Find that river. वो जो नदी Keep बह रही है speaking. आत्मा में,
Don't care what you're saying. आप क्या कह रहे हो वो मत सुनना. Some people say, Pastor, but all I say is da, da, da. How do you know that da, this first da, is not a different word than the next second da? कई लोग कहते हैं पास्टर मैं सिर्फ डा 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 कह रहा हूँ. आपको कैसे पता जो पहला डा और दूसरा डा अलग शब्द नहीं है? Let me tell you, so that you बताता understand. हूं, ताकि आप समझें. In Chinese, चाइनीज भाषा में, and this was told to me by a Chinese, मुझे एक चाइनीज व्यक्ति ने ये बताया था, the same word ma जो शब्द है माँ, has 5 meanings. उसके 5 मतलब हैं. Same word. एक ही शब्द है, But the way they say it, पर जैसे कहा जाता है ma, Ma. ma, ma, all has different meanings. सबके अलग अलग मतलब हैं. When an earthly language can be like that, जब एक पृथ्वी की भाषा ऐसी हो सकती है, how much more heavenly language? तो स्वर्ग की भाषा कितनी ज्यादा क्यों नहीं होगी? So switch off your logic इसलिए अपना लॉजिक बंद कर दो and open your spirit. और अपनी आत्मा को खोल दो. Amen? Okay, एक मिनट, ध्यान से सुनिए मेरी बात को. एक प्रभु के दास ने यूएस में, पास्टर शान में कोई बात बताते हैं. पास्टर शान उनके बाइबल कॉलेज में थे उस टाइम. उन्होंने लोगों को बोला, वहाँ पे पास्टर्स थे, उन्होंने कहा जो चाहता है कि परमेश्वर आपको अपनी चर्च बिल्डिंग दे, अपनी जगह छोड़ो और जस्ट रिजॉइस, भागो और रिजॉइस करो कि हो चुका है. और उन्होंने बताया कि सबने ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर जिस भी कुछ नहीं किया उन सबके पास आज अपनी चर्च बिल्डिंग है. तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि जो विक्ट्री के लिए आप बिलीव कर रहे हो होने वाली है, उसके लिए आज रिजॉइस करो. रिजॉइस करो कि हो चुका है, वो कोर्ट केस सेटल हो चुका है, वो प्रमोशन हो चुका है, वो बिजनेस खुल चुका है, वो बेबी आ चुका है, वो बीमारी ठीक हो चुकी है. जो कुछ भी आप बिलीव कर रहे हो, रेडी हो आप? ओके 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 ओके, हालेलुया. अब लग रहा है यू नो थोड़ा सही हो गया है हिसाब किताब. वरना स्वप्न की गहराई में जाने वाले थे कुछ लोग. Amen. Again, but we will celebrate, right? मैंने आपको हमेशा कहा था, मैं आपको फिर से ये डिक्लेयर करता हूं, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन होने वाला है यीशु मसीह के नाम में. चाहे दुनिया में कुछ भी हो, यही वचन परमेश्वर ने हमें साल की शुरुआत में दिया था. मुझे नहीं पता और क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता और क्या भविष्यवाणी करते हैं. मुझे पता है, मुझे और मेरी इस कलीसिया को प्रभु ने ये वचन दिया है. उसने कहा कुछ भी हो, तुम गोशेन में हो, तुम्हारे साथ वो नहीं होगा. आमीन. इजराइली गोशेन में थे, बाहर मातम था, उनके यहाँ नाच गाना था. बाहर अंधकार था, उनके यहाँ उजियाला था. बाहर मौत थी, वहां जीवन था. आमीन. जब ध्यान दो कि किसी भी भविष्यवाणी को निगल मत जाना. कुछ भी सुनो, बोलो मैं आत्मिक गोशेन में हूं. आमीन. और अगर आप इस घर का हिस्सा हो तो सुनो, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन होगा. पूरी लाइफ आपके घर से कभी मातम की आवाज नहीं, मगर हंसने की, गाने की और सेलिब्रेशन की आवाज आएगी यीशु के नाम में. आमीन. तैयार हैं आप लोग सेलिब्रेट करने के लिए? कम ऑन. You know, the Bible tells us, बाइबल में बताती है, you know, in 2 Samuel 6, you will read that when the Ark of the Covenant, you know, when David became like a child. दूसरा शामिल 6 में आप पढ़ते हैं कि वाचा की संदूक के सामने दाऊद एक बच्चा बन गया. And he was dancing like crazy before the Ark. और वो दीवानों की तरह नाच रहा था. He was a वाचा की king. संदूक के आगे. वो एक राजा था. See, the problem is so many people come to church, they're like,
I'm a CEO. दिक्कत ये है कि बहुत से लोग जब चर्च आ जाते हैं उसके बाद भी सोचते हैं मैं एक CEO I'm a CEO. I'm a government official. मैं तो सरकारी Who अफसर cares who you are? किसको परवाह है आप कौन This हो? is God's house. We all are His sons and ये daughters. परमेश्वर का घर है, हम सब उसके बच्चे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। Amen. Amen. Your earthly credential doesn't matter. आपका शारीरिक ओहदा उससे मायने नहीं रखता। Heaven doesn't open to CEOs and VPs. The heavens gate open to sons and daughters. स्वर्ग के फाटक CEO और VPs के लिए नहीं खुलते, बेटों और बेटियों के लिए खुलते हैं। He is a king. वो एक राजा था, He is a king of a nation. वो एक देश का राजा था। He's not thinking that I have to walk very वो sophisticated. नहीं सोच रहा कि मुझे सभ्य तरीके से चलना चाहिए। No, he forget. That's what casting your crown. ये है अपने मुकुट को नीचे रख देना। We have to learn to cast our crowns हमें अपने मुकुट को नीचे रखना सीखना and है become like little children in और His छोटे presence. बच्चों की तरह बनना सीखना है उसकी उपस्थिति में। Amen. And the Bible says David, he tore off his kingly clothes. He's like, man, these clothes will not let me dance properly. और बाइबल बताती है कि उसके जो राजकीय कपड़े थे उसने वो भी हटा दिए कि इन कपड़ों में मैं आराधना नहीं कर सकता। That's why I didn't wear a suit today. इसीलिए असली सूट नहीं डाल के आया आज। I'm gonna dance free. आजादी से नाचने के लिए। Amen. Anyway, so not being critical of Pastor Sam. No peer pressure. Okay. No peer pressure. Yeah. So Totally secure. so David danced like crazy. दाऊद दीवानों की तरह नाच And the रहा था। Bible says something so powerful और बाइबल कुछ बहुत ही शक्तिशाली है that wherever David went, the Ark of the Covenant went after him. जहाँ कहीं दाऊद गया वाचा की संदूक दाऊद के पीछे पीछे गई। God's heart is always after genuine lovers. He goes where the genuine lovers go. परमेश्वर का दिल हमेशा सच्चे दीवानों के पीछे है। जहाँ उसके दीवाने प्रेमी जाते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति जाती है। But you know what happened? और पता है क्या हुआ? The passage ends with a very tragic statement. वो कहानी एक बहुत ही दुखदाई बात के साथ खत्म David's wife, हुई। दाऊद की पत्नी Michal, whatever you want to call it, she criticizes David because of the way he was behaving. वो दाऊद की आलोचना करती है ये देखकर कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। She criticizes him. वो उसकी आलोचना करती है। And do you know, the Bible says, therefore, because she did that, God loves when His worshippers come before Him like little children. और क्योंकि उसने दाऊद की आलोचना की बाइबल कहती है इसलिए Can you put verse 2? इस वजह से Verse 22, I'm sorry. परमेश्वर को प्रेम है जब सच्चे आराधक बच्चों की तरह आराधना करते हैं। And because she criticized David, और क्योंकि उसने दाऊद की आलोचना की you know what David responds to her? He says, I will even be more undignified than this. दाऊद का जवाब उसको ये था कि मैं तो इससे भी ज्यादा तुच्छ या असभ्य बनूंगा। Amen. And will be humble in my own sight. और अपनी खुद की नजरों में नम्र बनूंगा। You know, the way to be humble in your sight is not to think too much of yourself. अपनी नजरों में नम्र बनने का तरीका है अपने बारे में ज्यादा ना सोचें। I don't know what other people are saying about me. अपने आप के बारे में मत सोचें कि I don't know what they're thinking about me. पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। Nobody is thinking about कोई me. आपके बारे में नहीं सोचता Because everybody is thinking about क्योंकि themselves. हर कोई अपने बारे में सोचता है। Right? Verse 23. 23वीं आयत। Therefore, you know what therefore means? Because of that reason. Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. और यहाँ लिखा है इस वजह मतलब उसने आलोचना की दाऊद की इस वजह से मरने तक उसको कोई संतान नहीं हुई। मिकाल Those who criticize those who are genuine lovers, a fruit of that is they're always barren. जो See the ministries of those YouTubers, all that they do is criticize others. You will see barrenness in their ministries. ये फल है उन लोगों की जिंदगी का जो सच्चे आराधकों की आलोचना करते हैं कि वो निसंतान, उनकी सेवकाई में कोई फल नहीं होगा, निसंतान होंगे। और आप उन सारे यूट्यूबर्स Because the ministry is barren, so they don't know what to do, so they take other people's videos and criticize them. उन सारे यूट्यूबर्स की सेवकाई देख लीजिए, वो निष्फल है। और क्योंकि सेवकाई निष्फल है तो उनके पास और कुछ नहीं है, दूसरों की वीडियोस लो, उनकी आलोचना करो बैठ के। But we'll be like David. लेकिन हम दाऊद की तरह बने रहे। Let us be like David. हम दाऊद की तरह बने। Amen.
Let us come before our Father's presence हम अपने पिता की like उपस्थिति में आए, little children. छोटे बच्चों की तरह. You know, whenever I come from somewhere and my daughters, they are waiting for me, they don't care how they are looking. They just run to daddy as they are. And their awareness is not on them, but on me. जब मैं कहीं से वापस आता हूँ तो मेरी छोटी बेटियाँ भागते हुए मेरे पास आती हैं. उनको ये परवाह भी नहीं होती वो कैसी दिख रही हैं, कैसी हैं. उनका ध्यान अपने ऊपर नहीं होता, उनको पिता के ऊपर ध्यान होता है. Amen. What price are you willing to worship Him? क्या दाम चुकाने को तैयार है आप उसकी आराधना में? Some people will not kneel down because it will destroy the fine crease of their pant. कुछ लोग घुटनों पर इसलिए नहीं आना चाहते कि उन्होंने वो कपड़े प्रेस किए हुए खराब Some हो जाएंगे. sisters won't cry because it will. कुछ बहनें इसलिए नहीं रोएंगी क्योंकि Their fine mascara is gonna be उनका ruined. वो मस्कारा खराब हो जाएगा. A face with a black line is more beautiful than आंसू से बने हुए वो काली लाइनें ज़्यादा खूबसूरत है परमेश्वर की नज़रों में एक अच्छे मेकअप से. Amen. Some people like so. Hallelujah. कुछ लोग बहुत ही सभ्य व्यवहार करते हैं कलीसिया में आने के बाद. No, that's not how you do hallelujah. नहीं, ये तरीका नहीं है उसकी We स्तुति do it करने like का. David. हम दाऊद की तरह करते हैं. Amen. Amen. Where you just get lost in His presence and celebrate and rejoice. जहाँ आप खो जाते हो उसकी उपस्थिति में आनंदित होते हो, मजे करते हो. And it's not just here. I'm telling you, sometimes I close my room and I am dancing like crazy in my room. और सिर्फ यही नहीं, कई बार मैं अपने घर में अपने कमरे को बंद करता हूँ और पागलों की तरह नाचता अपने कमरे में. I dance like crazy. दीवारों की तरह नाचता. Hallelujah. So even when you're doing it here, जब आप यहाँ पे भी कर रहे हो don't think about what other people will say. तो ये मत सोचना कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. Right? But let's just rejoice. पर हम आनंदित हों. So among these four diversities, तो ये जो चार अलग अलग प्रकार की अन्य भाषाएं हैं, only one I am in control. केवल एक ही है जिस पर मेरा नियंत्रण है. That is tongues for personal edification. और वो है व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा. That means I can pray in tongues for my edification as much as I want. इसका मतलब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूं अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए जितना चाहूं जी भर के. I can pray in tongues for my edification for 5 minutes. मैं अपनी उन्नति के लिए 5 मिनट प्रार्थना कर सकता हूं And I'll be edified 5 minutes. और 5 मिनट की उन्नति मिलेगी. If you charge your phone for 5 minutes, अगर अपने फोन को 5 मिनट चार्ज your करोगे phone will have charge for 5 minutes. तो आपके फोन में 5 मिनट की ही If you चार्ज charge होगी. your phone for 4 hours, अगर अपने फोन को 4 घंटा चार्ज your करोगे phone will be charged fully, can be used for much more things. तो आपका फोन पूरी तरह से चार्ज होगा, ज्यादा लंबे समय इस्तेमाल कर पाओगे. So how much charge is in you depends upon how many hours you pray in the Holy Ghost. तो कितना चार्ज आपके भीतर है निर्भर करता है कितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. Are you guys with me? मेरे साथ हो. So for all the other three, it is towards men, but this one, it's you and God. When I speak in tongue, I am not speaking to men, but to God. तो बाकी 3 तरह के जो अन्य भाषा के कार्य हैं वो मनुष्यों के लिए हैं, उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन ये एकमात्र है जो आपके और परमेश्वर के बीच में है. इसमें आप मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहे, परमेश्वर से बात कर रहे Now हैं. you will say, but Pastor, if you read that chapter, it's Paul says, I would rather speak 5 words of wisdom in church rather than praying 10,000 words in tongues. लेकिन आप कहेंगे कि पास्टर वहां अगर आप पढ़ेंगे तो पॉल कह रहे हैं कि मैं कलीसिया में आकर के 5 मिनट बुद्धि की बात करूंगा, ना कि 10,000 शब्द अन्य भाषा में बोलूंगा. Absolutely right. बिल्कुल सही कहा. What? Let's go there. Let's see what Paul says. देखते हैं पॉल क्या कहते हैं. Da 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 da. Hallelujah. I just felt very strongly that I have to clear this.
Otherwise, if you are not convinced that this is for you, you will never be able to take benefit of this beautiful privilege that is for new covenantal believers. मुझे अगुवाई हुई कि मुझे इस बात में सफाई देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे इस बात को तो ये जो सौभाग्य हमें दिया गया है खूबसूरत, इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे लाइफ में। Okay. Let's come to verse 13. 13वीं आयत पे आते हैं। No, let's see. Okay, 18. 18वीं। I thank my God मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ that I speak with tongues more than you all. कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूँ। Who is saying this? कौन कह रहे हैं? Apostle Paul. प्रेरित पौलुस। He's like, I speak in tongues more than you all. वो कह रहे हैं मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। But let's see what he says. Next verse. अगली आयत में क्या कहते हैं? Yet in the church, फिर भी कलीसिया के अंदर I would rather speak 5 words मैं 5 शब्द ही कहूंगा with my understanding अपनी समझ के साथ, that I may teach others also. ताकि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। So hear this. तो सुनिए, What Paul is saying is, पौलुस ये कह रहे हैं, if Sunday you came संडे को आप आए कलीसिया में and we say, thank you church, और हम कहते हैं धन्यवाद and चर्च, I say, ora la ba se और फिर मैं अन्य भाषा में बोलने लगा। and then I say, amen, घर मैंने जाओ। कहा आमेन, सब घर जाओ, एवरीबॉडी गो होम। I got edified. मेरी तो उन्नति हो गई, You wasted your time आपका टाइम वेस्ट हो गया, because I didn't teach you anything. क्योंकि मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं। Are you guys with me? मेरे साथ हो? He's like, in Sunday service, वो कह रहे हैं जब सभा होती है संडे की, because I'm talking to you, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I cannot use my personal prayer language. तो मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना भाषा का इस्तेमाल नहीं But करूँगा। hear this. सुनिए, When we have called you for all-night prayer meeting, जब हमने आपको पूरी रात प्रार्थना की सभा के लिए बुलाया है, when we pray in tongues, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना I करते am हैं, not talking to you. तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, You are not talking to me. आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। We all, हम सब, are you guys with me? मेरे साथ हैं, We all are motivating and encouraging you, building your personal capacity so that you can pray in tongues as much as you want. हम सब आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि आप अपनी खुद की क्षमता को जितना चाहो बढ़ा लो। This is not a Sunday service. ये संडे की सभा नहीं है। आप सो रहे होते घर पे अभी, You could have been sleeping in your house right but now, now you're here पर आप यहाँ पे हैं अभी, because we are going to together pray in the Holy Ghost. क्योंकि हम साथ मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। So, because I'm not talking to you, और क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ उसमें, you don't need to care what I'm saying. आपको सुनने की जरूरत नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ उसमें, And because you are not talking to me, और क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर रहे I हैं don't अन्य need to भाषा में, care what you're saying. तो मुझे परवाह नहीं है आप क्या कह रहे हैं अन्य भाषा में। We all are being edified together. हम सब साथ मिलकर अपनी उन्नति कर रहे हैं।